नमस्कार, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है। तो कैसे स्टार्ट किया जाए? सो आई कैन स्टार्ट बाय सेइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन नवनीत कपूर वेलकमिंग यू टू द मंथली फ्लाइट ऑफ पूर्णिमा उत्सव। देवी और सज्जनों, आपका ये जो महीने की हर महीने फ्लाइट होती है, उड़ान है, आप सभी का स्वागत है। हाँ? इस यात्रा के दौरान कोई फूड या स्नैक्स सर्व नहीं किया जाएगा, बट हाँ, सीट की पेटी बांधने की भी जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू फास्टन एनी सीट बेल्ट्स। You can get people who feel tired, sleepy, they can get off the plane at any time. And I do not know आपके आसपास क्या टेम्परेचर है, बट मेरे कैबिन के बाहर the temperature is 10 degrees Celsius. So I welcome all of you on this flight. तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, with a lot of warm greetings, people particularly who are feeling cold and who are based in areas where it is getting cold. Of course, it gets cold everywhere. Here it might be 10 degrees temperature, but for a person living in Bangalore, even 25 degrees or 22 degrees can be cold. So I welcome people from across programs. मैं सभी का स्वागत करता हूँ. There are people from programs related to Astika. So there are people who are part of our programs. There are also people part of our, we would like to call them sister concerns. Okay, so there is Medini. I welcome all participants from Medini, all the couples rather, I would say, from Medini. And I would also like to welcome if there are people from Ashtang Chikitsa. So इस फ्लाइट में कैसे बैठना है? सीधे बैठना है। तो ये बैक रेस्ट वगैरह वाले जितने भी हैं, जरा सीधे बैठिए, लेट के नहीं देखना है इसको। दिस इज नॉट फ्लाइट वेयर आप आराम से ऐसे सो जाएंगे तकिया लगा के। नहीं, जिसको नींद आ रही है वो सो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सीधा बैठे, सतर्क रहें। सतर्क एज इन जस्ट बी अ लिटिल अलर्ट, participate over here. It's so wonderful to see all of you over here. Many of you we met yesterday and the day before yesterday. Many of you we have been meeting off and on in our programs, and many people are still looking very serious. It's Purnima Utsav. Utsav means smile. So sit straight. Can we start with a smile? So wonderful. See, जिनके कैमराज ऑन होते हैं उनकी स्माइल अपने आप आ जाती है। जिनके कैमरा ऑफ होते हैं वो पता नहीं बेचारे क्या कर रहे होते हैं, या तो खाना खा रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन होगा तो क्या बोलते हैं, मुखौटा भी ऑन हो जाएगा आपका, जो बत्ती सी है वो भी अपने आप चमकने लगेगी। Once again, I welcome all of you to this session. For people who have just joined us for the first time, this is a session that is held every month on every Purnima, Purnamasi, Purnami, full moon night, however you wish to call it. Okay, that is up to you. तो आज ना हम माँ की बात करते हैं ना पिता की बात करते हैं, आज हम मामा की बात करते हैं। किसका? चंदा मामा की बात करते हैं। एक बार नितिका ने ये पहले यूज किया था, आई स्टीलिंग अ लाइन फ्रॉम हर। So what is this session about? This session is about, looking a little away from whatever our condition is. लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं है, इसीलिए क्रॉनिक एलिमेंट्स आती है। सेलिब्रेशन हम बार बार बोलते हैं, भाई 80% सेलिब्रेशन रखो, 20% सर्वाइवल रखो। हाँ, जो घर में गेम पड़ा है पुराना, मिट्टी खा रहा है किसी अलमारी में किसी और जगह, उसको निकालिए, गेम खेलिए। स्क्रीन के साथ टाइम थोड़ा कम स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जिनके अगर परिवार से दूर हैं तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सो what happens in this program, in the session, I have no idea. Okay, we just leave it to Swamiji. Some time back we were talking about the timing of the program. Many people say itna late karte ho. So I said, should it be at 9 p.m? He said no, it should be at 10 p.m. Okay, because we are only interested in people जो रात को जगेंगे. But sometimes I defy him. So he said no, 9:30 is okay. अभी थोड़ी सर्दी है, मान लेते हैं. So but वो भी अगर एक्चुअली वो लॉजिक काम नहीं करती है, क्योंकि बाहर तो हम खड़े नहीं हुए हैं, सब घर में बैठे हैं। काफी लोग तो रजाइयों में बैठे होंगे, and people who are in the cold region, they would also be covering themselves up. I mean, I myself have covered myself. So once again, welcome you once again
थोड़ा सीधा बैठिएगा, थोड़ा स्माइल करते रहिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा. You just do not know, even in your classes, जो भी आपकी classes होती हैं, what is coming to you when you keep your camera on. Your presence matters, not just tonight. Your presence and participation matters in whatever sessions that we hold, whether they are main sessions, practice sessions, Purnima Utsav sessions, and especially whenever the Swamiji is there. Please keep your camera on. You will, I'm going to use the greed wala factor. You will receive more than what you see, hear, expect, or practice. Okay. Keep your cameras on, keep smiling, and I'll stop over here. I think I'll hand over the session to Swamiji. I will have to go across multiple screens right now. There are 277 people. I think that number is still less. More people should come and join over here. With 500 से ऊपर जाना चाहिए, the way number of people that we have in our sessions. We should be forced to go live on YouTube at such time. Okay, so I'll hand over the session to him, and let's see what Swamiji does today, where he takes us, what kind of practice he makes us do. Now, these practices are once in a lifetime; they are never repeated. It's been almost a year or more than a year that we have started with Purnima Utsav. तो एक भी सेशन में प्रैक्टिस रिपीट नहीं हुई है. These are once in a lifetime practices. हम इसको बाद में शेयर भी नहीं करते हैं. We just share the session, but the practice is deleted from that. On that note, I'll hand over the session to Swami ji. And आज की उड़ान, आज की फ्लाइट के वो कैप्टन ही नहीं, गाइड भी है. He's the caretaker. He's the one who will guide us through the whole thing. Namaskar, Swami ji. I'll hand over the session. Just give me a moment. You know, intimacy produces life. आपको जीवन चाहिए तो थोड़ा इंटीमेट होना होगा, सभी से, सभी कुछ से. तो आपको मालूम है, sometimes you don't remember a name of a person whom you met long back. बहुत समय पहले मिले किसी से, नाम याद नहीं है. नाम गुम जाएगा. नाम याद नहीं रहता ना. You push yourself to remember that name. नाम याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं आता. Then you drop it. फिर छोड़ देते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं. And suddenly you remember. होता है ना. सबको एक्सपीरियंस होता है. This is what everybody experiences. बहुत कोशिश करके नहीं होता, पर छोड़ते हैं तो हो जाता है. Now you know there are scientists, or rather there were scientists, and there are still, who wanted to solve a problem and they couldn't. और छोड़ दिया तो solve हो गया. When they dropped it or slept over it, सो गए उसके ऊपर तो काम हो गया. सपने में आ गया आंसर. Sometimes the answer come in sleep. नहीं. आप बहुत कोशिश करते हैं, वो काम नहीं होता. किसी का सपोर्ट ले लेते हैं तो हो जाता. Now in your consciousness you find support of somebody. किसी का सपोर्ट लेते हैं. But
there are certain points when you don't understand किसने support किया. So you'll also see people saying, अरे गुरु है ना, गुरु जी हैं, गुरु आपके घर में फोटोग्राफ लगे हुए हैं ना, सो उसमें अपनी इच्छा लिख के डाल दो, रख दो, हो जाएगा. ऐसा बोलते भी है ना, पीपल से सच काइंड ऑफ थिंग्स. अरे छोड़ दो गुरु पे, हो जाएगा, बोलते हैं ना, और हो भी जाता है. So I met a person who was running a लॉ फर्म चलाता था. मुंबई में. We met in जागेश्वर नियर अल्मोड़ा, उत्तराखंड. अल्मोड़ा से ऊपर जाएंगे ना तो एक जगह है जागेश्वर. So the first Mahamrityunjay Linga was established there. India's first or world's first Mahamrityunjay Linga was established there. आप बोलेंगे वो क्या है? So forget about it at this moment. अभी भूल जाइए सर. So I met this person, and he was running a law firm, more than 100 lawyers working in his firm. बात हुई तो I come every year. या तो मैं हर साल आता हूँ. So I said, क्यों, क्या बात है भाई? हाँ, आप तो लॉयर हैं. He said, whatever I got from this place. So 14 years I didn't have a kid. 14 years of marriage. और यहाँ पे ट्रेकिंग के लिए आया था. So I went to this temple, Jageshwar Dham. He just looked at the temple and said, यहाँ पे किसने टेम्पल बनाया? हजारों साल पहले. ग्रेनाइट फ्रॉम साउथ इंडिया. वो पहाड़ पे चलाना, कोई रास्ता नहीं है. एंड देयर वर many temples, like सैकड़ों मंदिर है वहां. He was fascinated by looking at that place and was amazed कि ये कैसे किया होगा. And he was taking, शौक. आजकल का टूरिस्ट जो है वो कैमरा and that's it, architecture and that's it. Tourist means photograph and enjoying the scenery. Nobody talks at what kind of life is there. This is just like Angrezi Bhasha. All structure, no soul. Or today's science. All logic, no life. So nobody talks about the life in that place. Everybody talks about, oh, यहाँ पे ताजमहल बनाया, हजारों लोगों को की उंगलियां काट दी. You don't even look at that. You just look at, oh, structure कितना beautiful. अरे उन लोगों की आत्माएं रो रही हैं वहां पे. और वैसे भी शमशान में टूर करने के लिए कौन जाता है? दफनाने की तो जगह है. सो खोखले हो गए लाए, इंसान खोखला हो गया. नेक्स्ट टाइम यू कैन थिंक ऑफ ताजमहल, थिंक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जिनकी, आपकी अगर अंगूठा ऐसे करके काट दिया जाए तो व्हाट काइंड ऑफ पेन यू विल गो थ्रू. उसके बारे में सोचना, तभी स्टेप इन करना. अदरवाइज बॉयकॉट दैट प्लेस. अगर जिंदा है तो बॉयकॉट करो. अगर जिंदा नहीं है तब तो आप शमशान में ही जाओ, मरघट पे ही जाओ.
शमशान तो फिर भी अच्छी जगह होती है, जहां दफनाया जाता वहां क्या होता, कुछ भी नहीं. So I'm talking about there is a certain sense of presence in everything, life in everything. आपको केवल इंसान के कपड़े नहीं देखना चाहिए, उसका प्रेजेंस देखना चाहिए ना, उसका प्रेजेंस देखना चाहिए और उसके कपड़े देखने चाहिए. If you see the clothes and decide what kind of person that is, that means you are not living, you are not alive. So this person said, I came to this place and suddenly I had a moment of got the opportunity to talk with the head priest nahi, Pandit ji of that Jageshwar Dham. And I said, I don't believe in all this. इन सब में मेरा कोई भरोसा नहीं है. He said, it's okay. हम लोग तो कहते भी नहीं है आपको आने के लिए, आप ही आए हो. No, in India you don't say, अरे जाओ उधर जाओ. Only in India we don't say. Only in India we don't say anything. If you want to go, go. If you don't want to go, don't go. You want to believe on something, believe on something. Don't want to believe, don't want to believe. Otherwise, देखो, this is not a culture of believers. यहाँ पे कभी हम बिलीव करते ही नहीं किसी चीज को. So he said, who is telling you to believe on something? कौन बोल रहा है आपको बिलीव करने के लिए? हमने तो नहीं बोला कभी. He said, पर आप ये क्या करते हैं? He said, we want to keep the presence on, that's it. यहाँ पे एक प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस को बना के रखने के लिए हम सदियों से हमारे खानदान यही काम कर रहा है. We are not doing anything else. He said, what is the use of this? बोले इसका काम, इससे क्या मिलता है? So he said, जो आप चाहेंगे मिल जाएगा. The first thing is, ये इतना बड़ा जीवन है कि आपको लाइफ दे सकता, जो कि आपको कोई भी नहीं दे सकता. आपका धंधा पैसे देगा, जीवन थोड़ी देगा आपका धंधा. ऐसे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. He said, okay, what do you want? Do you want anything? He said, yes, I want. मतलब I have money, पैसा वैसा सब है, but I don't have a kid. बच्चा नहीं है. 14 साल हो गए. So you want a life? एक जीवन चाहिए आपको. He said, yes. कहते मांग लो. कहता है किससे मांगो? कहता है ऐसे ही मांग लो. ऐसे मानो कि आपसे बड़ा आपका बाप यहाँ पे बैठा हो. जब काम नहीं होता बचपन में बाप से मांगा कि नहीं मांगा? और बाप नहीं समझ में आया तो मां के पास चले जाओ. कहीं तो मांगा था, मांग लो. और he said कि मुझे I just somehow I got intrigued by his conviction. उसके अंदर जितना कॉन्फिडेंस था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. I thought कि ये he's oozing confidence more than what I can think of. कुछ ज्यादा है. क्यों ना इनकी बात मान ली जाए. He said, what do I do? मैं करूं क्या? कहते कुछ करने की जरूरत. Go inside. ऐसे मानो आपका बाप बैठा हुआ, मांग लो. बट सच में समझना कि he is your father. And if you want to do anything, then वो तुम्हारी मर्जी. तो कहा कि आप मुझे एक बच्चा चाहिए, वो मुझे सच में चाहिए. It is not that I'm saying it for the sake of saying it. नहीं, मेरी इच्छा है. And उन्होंने कहा था, I should take you as father. I'm taking you more than my father. मुझे चाहिए. And he came out. And he was describing it. मैं आपको केवल बता रहा हूँ what I heard from him. He said exactly 10th month
आई हैड अ बेबी, 10वें महीने में बेबी हुआ, 12वें महीने में उतने छोटे बेबी को लेके मैं यहाँ पे आ गया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एवरी ईयर आई एम कमिंग, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करता हूँ। सो नाउ ही इज माई फादर। He said, now he is my father, I have to come, मुझे तो आना ही पड़ेगा। What is this? ये है क्या? This is not an experience of one person. I am a live example of that. मैं जो कुछ भी आपको बोलता हूँ, it is coming from there. Somewhere, you don't know where. It is coming from my father or my guru. So, अब मैं इसको टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। This 21st century, I am making this attempt. Probably the first attempt. बहुत लोगों ने कोशिश किया, but they are not able to get the knack of what is it. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। I want you, so whosoever is present here, जो जितने लोग यहाँ पे present हैं, I want you to understand it and make people understand it. तो ये आपका काम नहीं है। This much I can ask, इतना तो आपसे मांग सकता हूँ, इतना तो हक है ना? नहीं? So आप आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, just try to share it with as many people as possible. इसमें देखिए, let me tell you, I'm not getting anything from it. मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें. You will also not get anything from it. आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है. So no profit, no loss. ठीक है? No profit, no loss. But आपको जो मिलेगा ना, वो आप imagine नहीं कर सकते. क्योंकि मुझे जो मिला वो मैं imagine नहीं कर सकता. So जब आप छोड़ देते हैं किसी चीज को, जब आप छोड़ते हैं, when you drop something, when you hold something, what do you hold? आप लिमिटेड कर देते हो ना किसी चीज को. You make things limited when you hold. आपने एक पर्सनालिटी होल्ड कर रखा है ना. You have held a personality, so it is limited. The moment you drop your personality or keep it loose, suddenly ये आप फैलने लग जाते हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे. What is the difference between a criminal and a sadhu or a yogi? What is the difference? Criminal is holding itself too much, and yogi is all loose. He is living like everyone is same for that person. So there are only two things that you do in your life. अब मैं आपको पूरा का पूरा describe कर रहा हूँ. The crux of what you call as samsara. Only two things are possible. Either you hold or leave. दो ही चीज possible है आपके लिए. Either you hold something or drop something. या आप किसी चीज को पकड़ें या छोड़ दें. ये दो चीज ही possible है. Every other culture of the world talks about holding something. Go across the globe. दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. This is 10 commandments. This is written in this book. आपको ये फॉलो करो, नहीं तो गला काट देंगे. Yes or no? Go anywhere. आपको होल्ड करना बताते हैं, बोलते हैं ये पकड़ो. Have faith. In India, nobody talks about faith. Maybe the word is now being used a lot. शायद आपको आपके माँ बाप ने भी कभी जोर देके कुछ बोला नहीं होगा कि यहां जाओ, ये करो, वो करो.
So this is the only culture in the world which talks about become free, मुक्ति, मोक्ष, यही कल्चर है. उससे और भी शब्द निकल के आए, निर्वाण, कैवल्य, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट. So this is the only culture which talks about you hold, it's okay whatever you hold, but you leave also. बट उससे भी मुक्त होना है. कहता पकड़िए, जो मर्जी पकड़ लो. Nobody stops you from holding anything. आपको कोई धंधा करने से रोकता नहीं, आपको कोई भी काम करने से नहीं रोकता, आपको डकैती करने से भी नहीं रोकते. और डकैतों को भी अपनी देवी देवता होते हैं, मालूम. So they say, okay, you hold because you are holding it. It is maybe it is too much necessary for you. शायद ये आपके जीवन मरण का प्रश्न है, कर लीजिए, but ultimately drop it. So even if you get married, you get 7 chances, isn't it? भाई 7 जन्म ही मिलेंगे. If you are very lazy, become मुक्त in 7 lifetimes. Otherwise, become मुक्त this lifetime only. यही कहते हैं ना. Even if you are marrying, tying a knot, why you are tying a knot? To become मुक्त. So दो ही चीज हो सकता है ना, either you hold something or you drop something. यही दो चीज हो सकती है. Every other culture, every other civilization is about holding, 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 and they break. आज तक भारतीय सभ्यता को क्यों नहीं मिटाया जा सका? क्योंकि जो छोड़ना चाह रहा है उसको क्या करवाओगे, उससे क्या करोगे, उसको कैसे मिटाओगे? वो तो मिटना ही चाह रहा है. और यहां पे कोई होल्ड ही नहीं करता. आपके घर की परंपरा अलग है, पड़ोसी के घर की परंपरा अलग है. एंड वी शादी भी करते हैं तो हमारे यहां तो ऐसा होता है, हमारे यहां वैसा होता है, सब कर लेते हैं. यू आर सो फ्री. यहां पे कपड़े पहन के बुद्धिमानी कोई नहीं दिखाता था, सिर्फ ये दिखाता था कि वेयर आई बिलोंग टू, वेयर आई बिलोंग टू. पगड़ी देख के आप बोल देंगे ओ ये तो वहां से आया. Nobody used to judge anybody. अरे इसने तो ये सूट पहना हुआ है तो ही से सूट पहन के इंटेलिजेंट होता है, गधे को सूट पहना दो इंटेलिजेंट हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी हैव डन. गधों ने सूट पहन लिए दुनिया में और हम उनकी पूजा कर रहे हैं. So this is the culture, this is the only culture which will survive. अभी सब खत्म हो रहा है, ये ही बचेगा, क्योंकि दिस इज अबाउट मुक्ति, फ्रीडम. तो हमने क्या समझा? सो फ्रॉम बिगर पिक्चर टू अ क्वांटम पिक्चर. मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूं. फ्रॉम अ बिगर पिक्चर टू क्वांटम लेवल, मैं सारी चीज दिखा रहा हूं. देन विल कम टू हाउ टू यूटिलाइज इट, इसको कैसे इस्तेमाल करें. सो एक एग्जांपल मैंने बता दिया. इफ यू ड्रॉप समथिंग, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, वो चीज सोल्यूशन मिलता है. इट मस्ट कम, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम समवेयर, कहीं से तो आया होगा. एवरी डे यू ड्रॉप योरसेल्फ, यस और नो. रोज अपने आप को छोड़ते हैं ना, रोज छोटी सी मृत्यु करते हैं ना, मृत्यु होती है आपकी रोज. एवरी डे यू डाई. रात को सोते वक्त में हु आर यू, कौन है आप? हस्बैंड वाइफ कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं. You die every day. And when you sleep, it's a beautiful thing. No? It's a beautiful experience. Is sleep a beautiful experience or a bad experience? It's a beautiful experience. So how can death be a bad experience? Tell me. If your sleep is a beautiful experience, death should be even multifold beautiful experience. And that is why this is the culture where we worship death. इसे आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है. नहीं, 1000 years back there was only Shivalingas. नहीं, nothing else but Shivalinga. Lord of Death. हम कहते हैं you are the most beautiful. सुंदर मूर्ति. नहीं,
बट आप उसमें भी फिक्स नहीं हो पाएंगे. इफ यू से ही सुंदर मूर्ति, फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, डोंट गेट फिक्स्ड. मुक्त करो, इस बात से भी मुक्त कर लो. तो क्या, फिर क्या है? ही इज काल भैरव, द मोस्ट dreadful. So don't fix his idea because he cannot be fixed. So he can give life. He is Aghora. He can give life. But he is Avimukteshwar. वो आपकी लाइफ भी लेंगे, खत्म करने में सहायक होते हैं. You can't define. So every day you go in a state which is not your experience, which is not, it is not about your experience. It is about something else. It is beyond your experience. Every day you go there. हर रोज उस स्थिति में जाते हैं जिसको आप नहीं जानते. You don't know. So let's start from a smaller thing जिसको कि आप समझ सकते हैं. And then we'll go towards other areas of how it happens in the world. So you are a little kid, छोटे बच्चे हैं, घर में कुछ करना, you want something. So आप अपने आप तो नहीं कर सकते. You can't do it on your own. So where do you go? किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं? Either father, पिता से बोलते हैं. पर डर लगता है पिता से, तो है ना, बैक डोर एंट्री. मदर, मम्मा ये कर दो, एंड मम्मा विल डू इट. वो पिता से करवा देंगी. Isn't it? That's how हमने सबने एक्सपीरियंस किया ना. This is all of us has experienced it. So what is your home? You can call your home a kshetra, a zone or a field. साइंस फिजिक्स के टर्म्स में क्या कहेंगे? फील्ड. Field is not a better word, not a good word for that, describing it. It is actually kshetra. So who rules that kshetra? Your father and your mother. And they have different work. So who is the observer or that kshetra? Observer कौन है? कौन जिम्मेदारी ले रहा क्षेत्र की? Ideally your father. वो जिम्मेदारी ले रहे हैं उस क्षेत्र की. Even if your mother has to, she is the most active thing, isn't it, in your home? बाप तो चुपचाप पड़ा रहेगा कहीं पे ना. माँ is something which is like active, है ना. She is like dancing around, नहीं? So, but ultimately, even if the mother has to do something, she'll go to the father, your father, है ना. इसी को शिव शक्ति प्रिंसिपल कहते हैं. It happens everywhere. If these two do not play, you do not have a kshetra. आपका क्षेत्र खत्म. परिवार, nothing called as family. See west में देखिए, they are destroying kshetra. And you know, in UK there is a ministry of loneliness. People are becoming lonely and there is a ministry of loneliness. उनके पार्लियामेंट में एक मिनिस्ट्री है. Because they have destroyed the kshetra. जब क्षेत्र ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका एक्सपीरियंस, यू लॉस्ट द एक्सपीरियंस, isn't it? You will not get into that experience. मिलेगा नहीं आपको एक्सपीरियंस. और उससे जो आपको फायदा होता था वो नहीं मिलेगा. You will not get benefited through it. Now let's go a little wider. So if you are in a village, so village is also kshetra, but village is ruled by
सरपंच और whosoever you choose, है ना, उनके अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा, isn't it? But nowadays there is no village, there are colonies, and most of the colonies are such as nobody takes responsibility. कोई भी उसका ऑब्जर्वर नहीं है, सही है ना, कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है. So there is a kshetra and there is an observer, somebody who takes responsibility. तो एक शिव होना चाहिए, उसका एक शक्ति होनी चाहिए, the dynamism of that kshetra, ऐसा होना चाहिए. In India, for many decades, nobody was the observer for India. Suddenly, we have somebody who is observing it, at least. तो अब हमारे पास में एक ऐसा इंसान है who is taking responsibility, who is like a observer, वो ऑब्जर्व कर रहा, तो things are changing. So there has to be an observer. क्षेत्र का कौन होता है? क्षेत्रपाल. So there can be a human observer, एक ह्यूमन भी हो सकता है, and there can be an energy observer, एक ऊर्जा भी हो सकती है. ठीक है? So for example, so let me take you from physical to non-physical. मैं आपको physical बता दिया ना. For a country is a क्षेत्र. Who takes care of who is the observer? Especially the government is the observer. है ना? तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट is supposed to be the observer. They are not observing it. वो तो अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं. They don't play an observer's part. वो एक अलग बात है. But fundamentally, this is how it happens. Not only in human beings, in animals also. In animals also, they create a kshetra and they try to observe that kshetra. ये आप एनिमल किंगडम में भी देखेंगे. इसका मतलब क्या? लाइफ का ये फंडामेंटल्स है. दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ. सो यू हैव टू हैव अ, व्हाट इज योर बॉडी? योर बॉडी इज अ क्षेत्र. एंड हु इज सपोज्ड टू बी द ऑब्जर्वर? यू. बट यू आर ऑब्जर्विंग YouTube, not your body or Google. If you observe your body, you know everything about it. है ना? आजकल तो लोग पूछते हैं कब खाना खाना चाहिए, when to eat. Oh, have you completely lost it? Your body tells you when you are hungry. आपका शरीर बोलता है ना भूख लगी है. So if you are asking when to eat, then you have completely lost it. So you need to create an integrity of kshetra. Only then things will happen properly. So what we used to do is we used to establish observer first and the houses around. So if you go to South India में जाएंगे ना, so an observer first, an Amman temple first. She is the observer of that area, and then the residents around, और वहां के उसके आसपास में houses. So even now you will go, if you go to a rural area, rural village, there is an observer of that village or a bigger area. एक वहां पे क्षेत्रपाल जरूर होंगे. या तो देवी की स्थापना होगी, या तो कुलदेव होंगे. somebody who is observing that क्षेत्र. So let's take it a little subtle. Physical से आप थोड़ा subtle पे आते हैं. So I'll make you understand through an example. एक example लेके मैं आपको समझाता हूं. Who is observing solar system? हमारा सौरमंडल है ना, all the planets and sun. Who is observing that क्षेत्र? Sun is the observer. Sun उसको संभाले बिना आप sun हटा दो, there is nothing called as solar. It starts from a star or sun. वहां से शुरुआत होती है. So always there has to be an observer. तो आपके बॉडी में कौन ऑब्जर्वर है? Who is the observer of your क्षेत्र of your body? The pineal gland. सिर के अंदर ना एक ग्लैंड होता है, pineal gland.
that is the observer. Pineal gland is the observer. वो वहां पहला फॉर्मेशन उसका, द फर्स्ट फॉर्मेशन इज पिनियल ग्लैंड. तो एक क्षेत्रपाल होगा तो ही क्षेत्र होगा, अदरवाइज देयर इज नो क्षेत्र. If there is a kshetra, there is somebody holding it. If there is a solar system, there is somebody holding it. जब तक क्षेत्रपाल नहीं होगा तब तक वो क्षेत्र नहीं बन सकता. So there has to be a kshetrapal. So when there is a kshetra, अगर एक क्षेत्र है, सन को हटा लो, is there any kshetra? Solar system? No solar system. बट यहां तो समझ में आता है. मैं इससे आगे जाता हूं. लेट मी गो अ लिटिल अहेड. इफ यू टेक ऑफ मरकरी, पहला प्लैनेट है ना बुध को हटा लो, फिर अगेन नो प्लैनेट विल बी देयर, सब कुछ विखंडन हो जाएगा. सो देयर इज अ पैटर्न. एवरीबडी इज प्लेइंग अ पार्ट इन होल्डिंग दैट होल क्षेत्र, बट फंडामेंटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन. कहीं से शुरुआत होती है. Now, if you want to change that kshetra, you will have to change sun or the quality of sun. उस क्षेत्र को बदलना चाहेंगे तो आपको सूर्य की क्वालिटी बदलनी पड़ेगी, तब वो क्षेत्र बदल जाएगा. अदरवाइज सन इज होल्डिंग दैट क्षेत्र इन अ पर्टिकुलर क्वालिटी, उसको होल्ड कर रहा है. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग. तो इसी को हम कहते हैं कि इट इंपैक्ट्स यू ना. Every planet is impacting you. How it is impacting you? There is a whole science, astrology, that defines how the positioning of a planet impacts a human being. तो उस क्षेत्र में किस किस तरीके की क्वालिटी बनती है, how many qualities and how it impacts your system. Astrology is a science towards that, and most of it we have lost. उसमें से काफी कुछ हम खो चुके हैं, हमारे पास है नहीं. Almost like 8% is left. 8% ही बाकी है. So now ये समझ में आया, हर जगह पे एक क्षेत्र है. Everywhere there is a क्षेत्र. Now either there is a human holding the क्षेत्र or there is a something else which is holding that क्षेत्र. जैसे sun is not human. So there can be planets and there are positioning and there can be other things also which is holding. It may not be human. वो ह्यूमन हो जरूरी नहीं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फायर. आप फायर को जिंदा नहीं मानते ना. यू डोंट थिंक फायर इज लिविंग, बट समबडी मस्ट बी होल्डिंग द क्षेत्र ऑफ फायर, मेकिंग इट हैपन. कोई फोर्स तो होगा ना, कोई तो होगा, कोई शक्ति तो है. वी कॉल दैट होल्डिंग ऑफ दैट क्षेत्र एज देव, देवता, देवी. So हमेशा देवता देवी शिव शक्ति प्रिंसिपल. There will always be two qualities which will be playing in that area. So कोई ना कोई अग्नि क्षेत्र को कौन होल्ड कर रहा है? If there is a fire, who is making it happen? There must be a force. That force is called Agni Deva. ठीक है ना, अग्नि देव. Then Varun Deva, Kamadeva. But who is the wife of Kamadeva? Rati. So उस क्षेत्र में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, what do you get? Rati means bliss, a kind of enjoyment. तो उस क्षेत्र में जो करेंगे उसका एक रिजल्ट होता. Whatever you do in that kshetra, there will be a result. So mango tree is a kshetra. What is the result? Mango. So there is a kshetra, and in that kshetra you can get a particular result. So you have also made a kshetra. You are the observer actually, and there is a freedom. Whatever experience you want to create in this, you can create. So tell me, एक सूर्योदय देख रहे हैं 10 लोग, सनराइज 10 people watching. Will there be same experience for everyone? Why not? Incidents तो एक ही है.
सनराइज तो सनराइज ही है ना. No. Everybody will get different experience. Because what? Everybody is a different personality. What is personality? It is fundamentally particular kind of kshetra. So places also have different qualities. किसी का नाम सुना कि यहां पे आते ही I came to this place and suddenly my business flourished. है ना. इस जगह पे आते ही मेरा धंधा चालू हो गया एंड आई विल नेवर लीव दिस प्लेस, चाहे आई शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस, बट ये मैं पकड़ के रखूंगा. बिकॉज व्हाट इज द रिजल्ट? ड्यू टू क्षेत्र. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आई एम स्लोली ट्राइंग टू टेक यू देयर. थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं बिकॉज यू माइट मिस इट. आप मिस कर जाओगे इसको. So, what is this universe? It is a kshetra. है कि नहीं? It is a kshetra. Now suppose there is nothing. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. Nothing. Not even space and time. So we call this state as Shiva. When there is nothing or everything, or मतलब उसको डिफाइन नहीं करते, you can't define it. We call this Shiva. Now, in Shiva state, there is a possibility, isn't it? एक possibility है. And suddenly, it starts playing up. वो dynamic हो जाता. It becomes dynamic because of something. कोई तो होगा जिसकी वजह से डायनामिक हुआ. तो व्हाट वी कॉल, हम क्या कहते हैं? शक्ति वूड शिवा. और शक्ति ने शिव को उत्तेजित कर दिया. एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन, बट कोई तो ऑब्जर्वर होना चाहिए ना. कैसा क्रिएशन होगा? कैसा क्रिएशन होगा? समबडी शुड बी द ऑब्जर्वर ऑफ दैट क्षेत्र, इजंट इट? So the first observer is called as Brahma. उसके ऑब्जर्वेशन के कारण एक क्षेत्र बना. Because he took the responsibility of observing a kshetra, the whole possibility became a kshetra. But क्षेत्र बन गया तो उसको बना के रखना पड़ेगा ना, otherwise it will collapse again back to nothing. If anything has come out of nothing, it will collapse back. तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा ना. The observer who has taken the responsibility of holding it in this manner, उसी को हम विष्णु कहते हैं. फंडामेंटली बता रहा हूं. And then it goes back. Rudra goes back. Rudra is like, हो गया टाइम, now चलो सो जाओ. What is Rudra? So टाइम हो गया, सो जाओ. तो क्योंकि ब्रह्मा, when Brahma observed it, he would have certain expansible wealth of energy. उसके पास तो ऊर्जा होगी ना थोड़ी उसको ऑब्जर्व करने की. उतना ही ऑब्जर्व होगा, फिर खत्म हो जाएगा. So ये fundamentally, I'm telling you fundamentally. So field, there is a field and somebody is observing that field. उसी को हम उसके देवता और क्षेत्रपाल कहते हैं. Without this, nothing can happen. कुछ हो ही नहीं सकता. Now, let's come down. अब माइक्रो लेवल पे बात करता हूं. There is something called, कभी गूगल करना, there is something called as quantum field. ये तो मैक्रो लेवल पे बात किया ना, बड़े लेवल पे बात. एक्चुअली बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, both are same. But let's, in our observation, let's talk micro or quantum level. Quantum level पे चलते हैं. क्वांटम लेवल पे क्या होता है? देयर इज अ फील्ड, उसको क्वांटम फील्ड कहते हैं. एंड सडनली समथिंग ऑब्जर्व्स इट. उस फील्ड को कोई ऑब्जर्व करता है. सो द मोमेंट इट गेट्स ऑब्जर्व्ड, इट बिकम्स अ फॉर्म. उसका एक फॉर्म बन जाता है.
नाउ व्हाट इज एटम? एटम, हम कहते हैं ना सबसे छोटा तोड़ दो एटम बनेगा। नहीं नहीं, उससे भी आगे तोड़, क्वार्क, लेप्टोक्वार्क, बोसॉन, ऐसे करके नाम कुछ कुछ को रखा हुआ। तो क्या आप एटम को ऑब्जर्व कर सकते, क्या आप देख सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं? कहते हैं एटम ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इट्स अ हेवायर इमेजिनेशन ऑफ फिरंगीज। वो लोग ना हवा में बातें बहुत ज्यादा करते हैं। नाउ देयर आर साइंटिस्ट विच आर कमिंग अप विच आर रियली लाइक इंडियंस, भारतीयों की तरह है। नाउ दे आर टॉकिंग सेंस। पार्टिकल फिजिक्स में जो लोग आ रहे हैं ना, दे आर टॉकिंग सेंस। तो दे से देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो एक बंदा आया कहता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, पहले एक न्यूटन था, है ना, उसके बाद आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने कहा न्यूटन गलत बोल रहा है, आई कुछ और है। देन केम हिज ऑन डिसिपल, उसी का अपना स्टूडेंट, कि नहीं आप भी गलत बोल रहे हो। तो लास्ट में चलते चलते कहते हैं हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते, वी डोंट नो एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज द रियलिटी चेंजेस द मोमेंट यू ऑब्जर्व एंड लीव। तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने आप को एक स्वरूप में दिखाता है, फिर वो वापस खत्म हो जाता है। दैट मीन्स टिल यू वर ऑब्जर्विंग, जब तक आप देख रहे थे तब तक वैसा दिख रहा था, आप देखना बंद करोगे तो नहीं है कुछ भी। सो इट इज जस्ट योर क्रिएशन। दिस इज व्हाट शिवा कॉल्ड माया. It is not a reality, but because of your observation it becomes a reality. आपके ऑब्जर्वेशन के कारण उसकी क्वालिटी बनती है, वरना इट इज नॉट अ क्वालिटी. सो माइक्रो लेवल पे साइंटिस्ट हैज फाउंड आउट दैट. पार्टिकल फिजिसिस्ट वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग सर्टन, बट द मोमेंट यू ऑब्जर्व इट बिकम्स समथिंग. आपके ऑब्जर्वेशन के कारण आपको वैसा एक्सपीरियंस होता है. आपके क्षेत्र के कारण आपको सनराइज का एक्सपीरियंस अलग होता है. Sunrise doesn't create an experience. The experience happens because of you. तो इसको हमने कैसे बोला? What did we call it? हमने क्या बोला? Your life is your karma. Your क्षेत्र is your karma. आपका क्षेत्र क्या है? इसे कार्मिक क्षेत्र कहते हैं. इसीलिए लाइफ एक्सपीरियंस इन योर टर्म्स, इट एक्सपीरियंस इन अ वे, एक तरीके से इसका एक्सपीरियंस होता है. एंड यू कैन ऑलवेज, नाउ दिस इज बिगर फ्रीडम ऑल्सो, दिस बिग फ्रीडम है ना. आप बदल भी सकते हैं. क्या अभी सभी स्माइल कर सकते हैं? कैन एवरीवन स्माइल एट दिस मोमेंट? देखो आप क्षेत्र जब मर्जी बदल सकते हैं, बिकॉज यू आर क्षेत्रपाल. आप देवता हैं अपने शरीर के. बट द थिंग इज you have, because you have created a quality, you get back very soon. कुछ करते हैं, इतने जोर नहीं होता तो वापस आ जाए. ज्यादा जोर लगाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर वो क्षेत्र बन जाएगा. yes or no? If you push yourself a little more, it will get embedded in your क्षेत्र, it will become your क्षेत्र. दारू रोज पियो, 6 महीने बाद दारू पीना is your क्षेत्र, your quality. बेवड़ा है कि नहीं है? You can always change the kshetra. The only question is how much to push. So when you create a quality, अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता. This is called as entanglement, quantum entanglement. So क्या बताया मैंने? Quantum field is like free field, कुछ भी नहीं होता वहां. The moment you observe, it becomes a quality. Suppose you are observing and somebody else is observing. आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो दो क्वालिटी पैदा होंगी. देयर विल बी टू क्वालिटीज. दे कैन इंटरैक्ट, वो आपस में इकट्ठे या रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं. दे कैन क्रिएट रिलेशन.
सो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जर्वर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बना, अनदर ऑब्जर्वर उसकी वजह से एक डिफरेंट क्वालिटी बन गई, प्रोटॉन। दे कैन कम टुगेदर, वो क्वांटमली इंटेंगल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इन अदर फॉर्म इट इज रिलेशनशिप दैट यू एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में आप रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं ना, you get quantum entangled. Quantum level पे it is quantum entangled, but इस level पे this is called as ऋणान बंध। सुना है नाम? सुना नाम? So you are a little observer, somebody is a little observer, another observer, and if you get entangled, this is called as ऋणान बंध, right? इसी तरीके से एटम बनते हैं। ऑन अ माइक्रो लेवल atoms form because of quantum entanglement, and then they entangle further and further and further। और ये देखो कैसे कैसे entanglement चल रहा है, नहीं? So in your life also, what is your life? It is basically an entanglement. What is your disease? Disease क्या है? Entanglement। एक तरीके का क्वालिटी बना लिया ना आपने। What is your experience? What is your life? These are all entanglement. Yes? So Runan Bandha creates what? Samskara, Vasana Samskara. It creates quality. ऋणान बंध से क्वालिटी बन जाते हैं, एंड दैट यू एक्सपीरियंस, वही आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। अरे मुझे तो कुछ अच्छा लगता नहीं, somebody wants to play and they feel playing experience is best experience. Somebody wants to paint, somebody wants to sing, somebody wants to play, कुछ ना कुछ करते हैं ना। मुझे ये इस तरीके के लोग पसंद है, आई लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज, दिस फ्लावर, दैट स्मेल, दैट फूड। So by Runana Bandha, you create samskara or qualities. Now quality or samskara or bandha can give you an experience. इसका मतलब क्या हुआ? When you entangle, ये quantum entanglement से experience होता है, और Runana Bandha से experience होता है। You want that experience, that is why you have taken a life. आपने जीवित क्यों हो गया? Because you want to experience these entanglements. But entanglement also creates difficulty. रोज रोज एक चीज खाओ, आप तोड़ना चाहते हो ना, बोर हो जाते हैं ना। So when you get entangled, it creates some experience, but then it starts creating difficulty. क्योंकि your nature is not to get stuck. It is expansion. वो expand होगा. The nature of life is expansion. You don't want to get stuck. तो वही experience शादी का लड्डू है ना, you want to experience, but then you want to be free also. Now let's accept it. Ultimately, we want to be free after getting into experience. This is the nature of life. दिन में काम करने के बाद सोना चाहते हैं आप. You want to be free of the entanglement. That is why you want to sleep. So our ancestors observed life in this manner. I'm just giving you a little hint of how our ancestors observed life, or how a yogi observes life. तो वो तो देख रहा है ना ये क्या ड्रामा चल रहा है. What is this drama going on? From micro to macro, the drama is same. एक ही ड्रामा चल रहा है, चाहे you go to a quantum level or you go to a universe level, ड्रामा तो एक ही चल रहा है.
So it is entanglement and then freedom. Entanglement and then freedom. You want to experience and then you want to be free of that experience. So what is disease? It is certain kind of entanglement. बीमारी क्या है? Entanglement. तो जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, if you don't break it, will you come out of a disease? No. आप नहीं आ सकते. But your nature is to create entanglement. There should be something in front of you or for you, an opportunity to be free also. बीमारी तो आप क्रिएट कर देंगे, पर फ्रीडम के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए तो इट विल बिकम अ मेस. Yes or no? You can create qualities, but if you don't become free of that, then that quality itself will create difficulty. चाहे कुछ भी आपके पास में आ जाए, थोड़े दिन बाद में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता ना. So you just see your life. You want something, चाहिए, but चाहने से खुशी तो नहीं मिल रही. रादर फ्री होने से ज्यादा खुशी मिलती है. एक बच्चे को, अपने बच्चे को थोड़ा भोजन करा के देखो. गिव अ लिटिल किड समथिंग, जो अपना बच्चा है, कितनी खुशी मिलती है. उसके लिए कुछ करते हैं तो खुशी मिलती है. And that is bigger happiness. उससे ज्यादा खुशी, कुछ करेंगे तो ज्यादा खुशी मिलती है. So when you relieve something or you are relieved of something or you drop something, कुछ छोड़ते हैं तो ज्यादा खुशी मिलती है. What is stress? Holding on. Entanglement is stress. What is ease? What is ease? Relaxation means छोड़ना. अब तो सांस भी नहीं छोड़ पा रहे. We have told you, not being able to exhale properly is disease. बोला ना, प्रोग्राम में बोला ना. What is disease? Entanglement is disease. Holding on to it disease. But hold करने का भी तो strength नहीं है. So how will you experience something better, or how will an experience not destroy you? If you have the strength of holding, but the strength of holding will always, कहते ना, एक हमारे संविधान में कुछ अधिकार हैं और कुछ जिम्मेदारियां हैं. You have some rights and some responsibilities. So आपका अधिकार क्या है? To experience life. But what is your responsibility? To drop it. पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो फिर बीमारी हो जाएगी. So we have created kshetras. Everywhere we have created kshetras. आपके घर में क्षेत्र क्रिएट किया. कुलदेव. What is Kuladeva? Observer of your genetics. So genetic बीमारी से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीडम चाहिए कि नहीं? उससे नहीं चाहिए? फ्रीडम तो चाहिए ना. सो किसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा? कुलदेव, who is observer of your genetic entanglement. वो आपको फ्री भी कर सकते हैं. Only in that क्षेत्र, because he is the observer. He is the observer. आपको कोई सजा देता है अपने घर में, आपके पिता, तो छोड़ भी सकते हैं ना, चलो हो गया. तो he is the observer of your genetic field. Kuladev, this is highest level of genetic engineering. आपको मैं बता रहा हूं, जिसे आज जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. डोंट इवन नो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. वो जीन्स को तोड़ मोड़ के सोचते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रहा है. क्रिएट अ जीन, देन क्रिएट अ क्वालिटी, क्रिएट अ लाइफ. करके तो दिखाओ. तोड़ ही सकते हैं ना, क्रिएट नहीं कर सकते. यू कैन ब्रेक इट, डिस्ट्रॉय इट, डिस्टर्ब इट. मिसफिट्स, क्रिएट मिसफिट्स.
जो कि सर्वाइव नहीं करेंगे। एक भेड़ क्रिएट किया था ना, सर्वाइव नहीं किया, बिकॉज यू डोंट नो द होल गेम। पूरा गेम तो आप जानते ही नहीं हो। तो एक भी तो जेनेटिक बीमारी से नहीं निकल रहे। ब्लड प्रेशर दवाई से किसका ठीक हो गया? डायबिटीज, थायराइड, किसी का भी नहीं, बिकॉज दे डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। तो जेनेटिक डिफेक्ट अगर आपको ठीक करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? सी, मैं वापस से कहूंगा, प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। वर्किंग अप और अपने कर्म को खुद ब्रेक करना इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। सो दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग यू डू कुंभक, कि खुद ब्रेक करो, एंटेंगलमेंट को ब्रेक करो, डिजीज को ब्रेक करो। बट व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग? उसके बाद अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यू टेक द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ दैट क्षेत्र। ये हमने हर जगह स्टैब्लिश किया। सो दुनिया में कुछ बड़ा काम करना है, यू वांट टू क्रिएट अ डायरेक्शन फॉर दिस वर्ल्ड, दुनिया को एक दिशा देनी है, सो दैट वी आर नॉट इन डिजीज, डिजीज नहीं हो, डिफिकल्टीज नहीं हो, हाँ, ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग शुड नॉट हैपन। तो किसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा? हु इज ऑब्जर्विंग दिस वर्ल्ड, दिस विश्व? किसको ऑब्जर्व कर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है इस विश्व को? विश्वनाथ। अरे भूल गए, अभी तो इनॉग्रेट किया कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ। People have given life to create such fields. The greatest yantra that ever a human being will be able to create is Kashi, the oldest city in the world. अविमुक्त क्षेत्र। अगर आपको मुक्ति चाहिए, जिंदगी में परेशानी नहीं चाहिए और जिंदगी को खत्म भी बहुत सुंदर से करना चाहते हैं, काशी जाना पड़ेगा। विश्व को अगर विश्व के लिए कुछ करना तो विश्वनाथ जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको यू वांट द एक्सटेसी ऑफ लाइफ, द जॉय ऑफ लाइफ, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ, वेयर डू यू गो? किसके पास जाएंगे? सोमनाथ। हाँ, समय आपके साथ में नहीं है, टाइम इज नॉट विथ यू। समय आपके साथ में नहीं है। वॉट एवर हैपन्स, इट हैपन्स आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ प्लेस। गलत समय पर गलत चीज हो जाती है आपके साथ जीवन में। किसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा? महाकाल, काल भैरव। यस, तो महाकाल इज द ग्रेटेस्ट टाइम कीपर। ही इज टाइम। हाँ, यू वॉन्ट टू नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ। आप जीवन को जानना चाहते हैं, वेयर यू हैव टू गो? कहां जानना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? वैसे पढ़ना चाहते हो तो कहां जाते हो? सम काइंड ऑफ लाइब्रेरी, इधर ऑनलाइन ऑफलाइन। गूगल भी तो लाइब्रेरी है ना, इट इज जस्ट अ लाइब्रेरी, इजंट इट? तो कुछ जानना है तो गूगल पे जाते ना। ऐसे ही देयर इज द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ, लाइफ सीक्रेट्स। केदारनाथ। हम्प है ना वो, बैल का क्या है? हम्प क्या होता है? स्टोर होता है ना। इट्स लाइक लाइब्रेरी। देयर इज नो शिवलिंग इन केदारनाथ, इट्स अ बिग रॉक लाइक अ बुल्स हम्प। बैल का जो ऊपर उठा हुआ होता है ना, वो उसकी तरह। इट्स अ स्टोर। कैमल का हम्प क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। इट्स अ स्टोर हाउस, इट्स लाइब्रेरी ऑफ लाइफ। एनिमल नेचर से निकलना चाहते हैं। You see, some people are like animals. They are very less sensitive. Sensitivity है ही नहीं. If you are like an animal, you will not be able to experience life in its profundity.
लेस, जानवर जैसा एक्सपीरियंस होगा, वेरी लेस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। यू वांट टू इवॉल्व, आप उससे उठना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, आप जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। कहां जाना है? वेयर डू यू हैव टू गो? किसके क्षेत्र में जाएंगे? पशु पति नाथ। सो जस्ट गिवन यू अ लिटिल एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देर आर मेनी शक्ति क्षेत्र, 64 शक्ति क्षेत्र है, एंड यू विल गेट बेनिफिट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फर्टिलिटी से रिलेटेड इशू है, कहां जाएंगे? व्हाट इज द योनि ऑफ अर्थ? कामाख्या। just create, just relate it with what our ancestors have done, and these are to establish a kshetra, you need life. बिना लाइफ के क्षेत्र स्टैब्लिश नहीं होता। दिस क्रिएटिंग an alive क्षेत्र इज कॉल्ड एज प्राण प्रतिष्ठा। उसके लिए लाइफ चाहिए, योगियों ने अपने जीवन दिया इसको बनाने के लिए। बता दो दुनिया में कहीं कोई लाइफ क्रिएट कर सकता है, कोई क्षेत्र क्रिएट कर सकता है? दे कांट इवन इमेजिन, उनकी सोच से भी परे है। So if you want to break a little karmic entanglement, disease, difficulties of your life, I'm not able to succeed, मुझे जो चाहिए मिल नहीं पा रहा। बहुत दोष बोलते हैं ना, what are दोष? entanglement, पितृ दोष, ग्रह दोष, ऐसा बोलते हैं ना। entanglement, उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। you will have to break it, either you break it. The question is, do you have that intensity? If you can't break it, and there is nothing wrong with that, you work towards it, वो आपको काम करना ही चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए, because that is the best thing a human being can do. Break it with your intensity. लेकिन नहीं ब्रेक कर पाएंगे सभी। So it is always advisable to go to your parents, to go to your guru, to go to your Kuladev, to go to your Kuladevi. पेरेंट्स ही तो हैं, उनके साथ में जुड़े हैं। And these are kshetra which are created across India. So तीर्थ, doing तीर्थ was a part of Indian culture. साल में एक बार तो जरूर किसी तीर्थ स्थल पे जाना है, because your life will become hell if you don't create a possibility of freedom within you. अगर मुक्ति का पॉसिबिलिटी आप नहीं क्रिएट करते, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? लॉजिक एंड सेलिब्रेशन शुड गो टुगेदर। नहीं तो केवल लॉजिक पे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। इफ यू जस्ट गो टुवर्ड्स थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली, योर लाइफ विल बिकम हेल। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज दैट कांट बी अवॉइडेड, बट देन थिंक अबाउट एवरीवन एल्स ऑल्सो। तो वसुधैव कुटुंबकम कोई स्लोगन नहीं है, इट इज अ ट्रीटमेंट, इट इज अ थेरेपी। सो दिन में काम करते हैं तो शाम को नाचे ना, थोड़ा भजन करो, कीर्तन करो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा फ्री हो लो, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। सर्वाइव कर रहे हैं, सेलिब्रेट किए बगैर सर्वाइव मत करो, ना सर्वाइवल विल बिकम अ बर्डन फॉर यू। एवरी डे सेलिब्रेशन, एवरी डे फेस्टिवल, यही तो इंडियन कल्चर है ना। यस और नो, यही तो इंडियन कल्चर है ना। कहां जाएंगे? वापस घूम के फिर यहीं पे आ जाएंगे। बीमार होके आएंगे क्या यहाँ पे?
वही तो हो रहा है ना. Nobody is finding solution anywhere in the world. They're coming back to India. क्योंकि solution यहीं पे है और कहीं solution हो नहीं सकता. So it is a युग परिवर्तन काल, युग परिवर्तन का समय है. So we'll go further, but गर्भाधान के जितने लोग हैं, all the people of गर्भाधान, right? So अभी क्या करना है? You do a little process, छोटा सा एक process करना है. कैसे करेंगे? लेट के करेंगे. Lying down, huh? You lie down and you do. Only people of गर्भाधान will do it. लेट के आपको क्या करना है? You know the point of स्वादिष्ठाना, है ना? वो तो आप जानते हैं. तो आपको लेट के क्या करना है? You focus on स्वादिष्ठाना. स्वादिष्ठान पे फोकस करें. Tense your whole body gently. पूरे शरीर को हल्के से टाइट कर लें. Try to inhale for a count of 8 and exhale for a count of 8. Very slow. Through स्वादिष्ठान. क्या करना है? लेट के स्वादिष्ठान पे फोकस करके just tense your body towards स्वादिष्ठाना. Try to inhale through स्वादिष्ठाना for a count of 8 slowly and exhale for a count of 8. ठीक है? ये करना है. कितने बार करेंगे? कितने बार करेंगे? 36 ब्रेथ, है ना? आपके कस्टमाइजेशन में भी कई लोगों को मिला होगा. सो टुडे एवरीबॉडी विल डू इट. स्वादिष्ठान पे फोकस करके टेंस योर बॉडी जेंटली टुवर्ड्स स्वादिष्ठाना. इनहेल थ्रू स्वादिष्ठाना, exhale through swadhisthana in a count of 8, 8, 1 cycle, 36 cycle, 16, ये 16 है, plus 4 finger 16, 32, and one more, 9 finger count. अपने आप करते जाएं, just do it, keep listening, सुनते जाएंगे, and when you are finished, just get up and sit. So, क्षेत्र के terms में I have explained the whole creation. The whole creation in terms of क्षेत्र, small to big to big to big. 36 धारा, 36 inhalation exhalation, 1 round होता है. Now this is not follow only people of Garbhadhana program. गर्भाधान में गर्भाधान is to become pregnant. है ना? प्रेगनेंसी वाला पार्ट अलग है. नॉट फॉर अष्टांग गर्भ संस्कार. जो अष्टांग गर्भ संस्कार में वो नहीं करेंगे. ओनली गर्भाधान प्रोग्राम. सो देयर इज फ्रॉम वेरी क्वांटम लेवल टू यूनिवर्स लेवल देयर आर फील्ड्स क्षेत्र 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 क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र observed by अलग अलग देवता and देवी. The observer is called as देवता and देवी. So now how to break quantum entanglement. मैं आपको अब तरीका बता रहा हूं how to break, and I'll tell you certain secrets of yogis. हाँ, कुछ सीक्रेट भी बता रहा. So how to break. वितिका हेल्प करेगा. So how to break this field. कैसे ब्रेक करेंगे? तोड़ेंगे कैसे? क्वांटम, किसी भी क्वांटम एंटेंगलमेंट को तोड़ेंगे. You only get relief when you break certain entanglement. आपको रिलीफ तभी मिलता है ना? आपके शरीर में कुछ गया, रिलीफ कब मिलता? When it goes out, isn't it? नहीं, जब वो बाहर निकलता तब रिलीफ मिलता ना. So when it breaks out, you get relief. So there can be certain experiences because of entanglement, but experiences are short lived. हमेशा थोड़े समय के लिए चलता. उसके बाद आपको उससे निजात पाना होता. You need to break it.
So I'm talking in terms of bad experiences or disease. Physical, mental, emotional, or in terms of subtle energies. कितने तरीके के डिजीज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के. इट कैन बी फिजिकल, एक शारीरिक बीमारी हो सकती है, विच इज फिजिकली देर इज समथिंग विच हैज गॉट एंटैंगल्ड, उलझ गया अंदर, अटक गया. मेंटली इफ सम काइंड ऑफ अ थॉट गेट स्टक, एंटैंगल हो जाते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं. व्हेन यू कांट रिलीव योरसेल्फ ऑफ दैट थॉट. इमोशनली, ये सिंपल वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूं, इट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच एक्सप्लेनिंग इट, बट क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इन सब चीजों में ज्यादा हुई है, तो हम ये कह सकते हैं. आइडियली वी नो हाउ वी डिस्क्राइब द layers of this body. अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. This is the right way to approach it. There can be these 5 kinds of disease. So physicality में disease हो तो वो एक entanglement की वजह से होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा. If you break it, you will be free from it. Mentally also there is a entanglement. Emotionally also, emotional blocks कहते हैं ना, we call emotional blocks. So इमोशनल ब्लॉक्स को भी तोड़ना पड़ेगा तब आप उससे निकलेंगे. आदत क्या होती है? आदत है ना, तोड़ना पड़ेगा तब आप उससे निकलेंगे. इफ यू ब्रेक अ टेंडेंसी, यू विल कम आउट ऑफ इट, यू विल बिकम फ्री. So it is on all fields, on all levels, it is some kind of an entanglement. Runana bandha and then vasana samskara. So कैसे ब्रेक कर सकते हैं? On the physical level, I'm telling you the secret of treatment. जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटियों से जो ट्रीट करते हैं, उसका सीक्रेट बता रहा हूं. कोई भी चीज कड़वी खा लेंगे तो आपके अंदर कुछ ब्रेक हो जाता है. एनीथिंग विच इज बिटर, कड़वा कुछ भी है ना, आप खा लो तो देखो लूज मोशन हो जाए. बहुत कड़वा है तो लूज मोशन, इजंट इट? हाँ या ना? सो जो आपका एंटीबायोटिक होता है ना, नेचुरल एंटीबायोटिक आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन केमिकल एंटीबायोटिक, इट इज बिटर. खा के देखो जरा. तो कोई भी चीज बिटर खा लोगे तो कुछ खुल जाएगा, समथिंग विल, इट विल ब्रेक. कोई चीज ब्रेक हो जाती है. सो अ बिटर थिंग कैन ब्रेक ऑन द लेवल ऑफ फिजिकलिटी. शारीरिक लेवल पे कोई कड़वी चीज ब्रेक कर सकती है, बट वो थोड़े समय के लिए असर होगा. इट विल वर्क फॉर सम टाइम ओनली, टिल दैट प्रोडक्ट क्रिएट्स इंपैक्ट. उसका जब तक असर होगा उसी समय तक काम करेगा वो. उसके बाद you will get back, because you are not just physicality. आप केवल physicality नहीं है. So it can be little supportive, थोड़ा support होगा, but not a treatment, not a transformation. आपको नहीं बदल सकता वो इतना. लंबे समय तक लेंगे, for many years, then there can be a little transformation. थोड़ा होगा, फिर भी पूरा नहीं होगा. But it can also create a little transformation, but for long time. तो मेडिसिन तो लॉन्ग टाइम तक नहीं लेते आप. रादर योर बॉडी विल बिकम लाइक टू मच डिस्टॉर्टेड. सो कड़वी चीज जैसे ब्रेक करते हैं, मीठी चीज इकट्ठा करते हैं, इट क्रिएट्स. किसी को फंसाते कैसे आप? मीठा मीठा बोल के फंसाते हैं ना. आप एंटेंगलमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? मीठा मीठा बोल के करते हैं ना. मीठी चीज फंसाती है, इट क्रिएट्स. दैट इज व्हाई इट इज पोषक. आपके शरीर के लिए क्या है? पोषक होता है ना मीठा. एक बच्चे के लिए क्या होता है? अ किड विल लव स्वीट ना, उसको बनाना है, उसको एंटेंगल करना है कि नहीं? उसको मीठा पसंद आएगा. स्वीट कैन क्रिएट, एंड देयर आर एस्ट्रिंजेंट विच ऑल्सो जबरदस्ती आपको इकट्ठा करेगा. So in this culture, what we used to eat after a meal, भोजन के बाद क्या खाते हैं? पान खाते हैं? अब तो नहीं खाते.
यू शुड ईट पान. अच्छा, सुपारी मुंह में डालें और चबाएं. जस्ट ईट सुपारी एंड च्यू इट. हाउ विल यू फील इन द माउथ? कैसा मुंह में फील होगा? पकड़ लिया ना, ऐसे कस लिया. कसैली, कसैला है वो, कस लेगा वो. Isn't it? तो आपके मसूड़े अगर ढीले हैं तो सुपारी खा लो, देखो कस लेगा. एस्ट्रिंजेंट. तो कहीं भी कसावट डालनी है, पकड़ना है. समथिंग हैज गॉट ओपन, पकड़ना है. सो भोजन के बाद क्यों ले रहे हैं? सो दैट यू आर एबल टू होल्ड इट प्रॉपरली इन योर बॉडी. कितना कमाल का साइंस है. एक्चुअल साइंस बता रहा हूं. सो खट्टा, कोई भी खट्टा, एनीथिंग विच इज सार, व्हाट इट डज? इट इंक्रीजेस हीट. आपके शरीर में हीट बढ़ा देता है. खट्टी चीज हीट बढ़ाती है. उससे क्या होगा? योर डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन. खट्टे से क्या होगा? प्रॉपर डाइजेशन. बट इफ यू आर ऑलरेडी वेरी वीक इनसाइड, अल्सर, एलर्जीज हो रही हैं, तो खट्टा तो आपको और नुकसान करेगा. So, but I'm talking about the healthy system. So it increases heat. But if you have lack of heat, what would your body want to eat? आपको क्या पसंद आएगा अगर अब शरीर में हीट कम है? तो खट्टा पसंद आएगा आपको. So this is a self-regulating mechanism. Make it healthy and just listen to what it says. ये क्या कहता है वो सुनेंगे तो आपको दवाई तो ये रोज बता रहा है. व्हाट इज योर मेडिसिन टुडे? व्हाट टेस्ट? ठंड के टाइम पे आपको अलग चीज खाने का मन करता है, गर्मी में अलग चीज खाने का मन करता है. इजंट इट? योर टेस्ट चेंजेस विद सीजन, है कि नहीं है? सो बट दीज आर ऑल डायनामिक फैक्टर्स. ये बदलता है विद सिचुएशन. So nothing in India, there is nothing called as this is good, this is bad. किसी के लिए दूध अमृत है, किसी के लिए जहर है. So it is not milk which is bad. Milk bad नहीं है और good नहीं है. It is not good or bad. So what creates, what helps your entanglement is good if you are healthy and is bad if you are sick. जो आपके रुणान बंध को पोषण देता है अगर आप बीमार हैं तो वो गलत है. जैसे दारूबाज का रुणान बंध क्या है? दारू पीना, है ना? सो उसका एंटेंगलमेंट दारू बढ़ा देगा तो दारू बुरी है. और तपस्या और झेल जाना उसके लिए अच्छा है. सो डिफिकल्टीज और तपस्या यानी उसकी तकलीफ को झेल जाना उसके लिए अच्छा है, वो ठीक हो जाएगा. सो हमने तो ऐसे भी ट्रीटमेंट किए ना इंडिया में कि एक क्षेत्र में जाइए मगर तकलीफ करते हुए जाइए, लेट लेट के जाओ, भार उठा के जाओ. ऐसा है कि नहीं? देखा है आपने? हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इट? यू विल नॉट ईट फॉर 40 days, जस्ट वंस अ मील. अय्यप्पन टेम्पल में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? You will take bath twice and then you will walk for a certain period or lie down. लेट लेट के जाएंगे. That can break your entanglement. Yes or no? तो दवाई है ना आपकी. क्या क्या मेडिसिन क्रिएट किया हमने. जस्ट थिंक अबाउट. तो तपस्या से कभी भी भागना नहीं चाहिए, तकलीफ से कभी भी भागना नहीं चाहिए. डोंट रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज. क्रिएट मोर डिफिकल्टी फॉर यू, योर रेजिलियंस विल बिकम मोर. तो बीमार में आराम करना हराम है, ठीक नहीं है. पुश करना, थोड़ा थोड़ा पुश करना. जस्ट पुश योरसेल्फ जेंटली. दिस इज लाइफ.
If you can't move, are you dead or living? You are dead. So movement is life. जीवंतता बढ़ा दें, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन try to go to any kind of a क्षेत्र which is alive. ये तो समझ में नहीं आता ना दुनिया को, तो आके यहाँ पे पता नहीं इतना विध्वंस मचा दिया। It is more than their mind or इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट से भी बहुत आगे की चीज है, नहीं समझ पाएगा। आप लोग समझ पाएंगे बिकॉज यू आर इंडियन, यू आर लकली बॉर्न इंडियन। आपका शायद नहीं है, कुछ पुण्य होगा जिसकी वजह से आप इस धरा पे पैदा हो गए। तो आप समझ पाएंगे इसको, और कोई समझ भी नहीं पाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गो टू अ क्षेत्र which can take you off your entanglement. फिजिकल लेवल पे बताया कुछ कैसे इसको तोड़ सकते हैं। इवन इफ यू टेक अ नार्कोटिक, आपको मालूम है ना बाबा लोग जो है वो गांजा पीते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ डिसएंटैंगलिंग देमसेल्फ। ऋणान बंध तोड़ने का तरीका है। तो उनको मत देखो, वो उनके लिए है, नॉट फॉर यू। And that is the one of the best ways for them to break it. क्योंकि वो तो ब्रेक ही करना चाहते हैं। They want to be free. Why they are sadhus, yogis? They want to be free. And they are taking a little support. Taking a little support is not bad. But they are not advising it for you. And talk to them. जिस तरीके से वो आशीर्वाद देते हैं ना, आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। So don't create any idea about what people are doing. ये तो गलत है, ये तो सही है। जो भी ये बोलता है उसको चुप कराइए, उसको बोलो कि नहीं, तुम एलिजिबल नहीं हो ये सब बोलने के लिए। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश आजकल ये बोलता है, चिलमदारी। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व द नॉलेज, टू प्रिजर्व द विजडम ऑफ आवर फोरफादर्स। रामकृष्ण कोई और नहीं थे, वो हमारे बाप थे, हमारे दादा बाप थे। एवरीबडी इन इंडिया हैव द सेम हिस्ट्री। आप अपने बाप पे आंच मत आने दो। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आगे की लाइफ खराब हो जाएगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। एटलीस्ट सपोर्ट इट। वर्बली तो आप उसके खिलाफ में जा सकते हैं ना। सो कोई क्या कह रहा है आपको नहीं मालूम है, डोंट क्रिएट एनी आइडिया अबाउट इट। इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ ब्रेकिंग ऋणान बंध। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दैट शुड नॉट बिकम योर ऋणान बंध। यहां पे प्रॉब्लम है। यू कैन यूज इट टू ब्रेक, but it should not become your bandha. You can even use alcohol, you can even use drug to break something in you. But अभी पहली बात वो झेलने लायक नहीं है। दूसरी बात, you will get entangled in a different way. एक entanglement छोड़ेंगे, दूसरे जगह entangle हो जाएंगे। Now this is not what we want. So it is important that you have the strength of bearing it. Then you can go for it. So Shankaracharya, Adi Shankaracharya was going through a village and he found a brewery, एक दारू की भट्टी। So he took one bottle and drank. So every disciple thought, oh, we got a free hand now. हमको तो रास्ता मिल गया, सभी ने पी लिया। फिर आगे गए, हाँ, तो आगे गए तो there was a village of butchers, हाँ, तो वहां पे मांस मिल रहा था। तो शंकराचार्य जी ने खा लिया तो सभी ने खा लिया।
जब आगे गए तो एक लोहार का गांव मिला, आयरन स्मिथ. सो दे वर मेल्टिंग आयरन. आयरन को, लोहे को पिघाल रहे थे. So he took one glass and drank. Nobody came then. He asked, why not? भाई तुमने पहले मैंने जो किया तुमने वो किया ना, तो अभी भी करो. Do it now. He said, no, we can't do it. हम इस लायक नहीं हैं. तो he asked, तुमको कैसे मालूम चला कि you were capable of those things also? तुमको कैसे पता चला कि तुम उसके लायक भी थे? So don't create ideas. For a capable person, nothing is bad. So one of the 7 disciples of Shiva asked Shiva, इस दुनिया में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब? What can we do, what we can't do? He only said, whatever you are capable of, you can only do that. जिसको करने से आपको कोई नुकसान नहीं, आप झेलने लायक हो, वही कीजिए, वही आप कर सकते हैं. एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि वही आप कर ही सकते हैं, अदरवाइज यू विल गेट इनटू डिफिकल्टी. सो यू कैन ब्रेक in many ways. You can bend your body and break a ऋणानुबंध. अगर आपको तोड़ना है ना, तो आप अपने शरीर को बेंड कीजिए, उससे भी ऋणानुबंध टूट जाता है. What is hatha yoga? It is way of breaking your entanglement. Yes or no? Now, see, कुंभक के साथ में थोड़ा सा what you say tricky है, because it is much more than what you can even think of. So kumbhak can do both. It can create, it can break. कुंभक tricky है. So it can create, it can break. तो जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो हम क्या कहते हैं? We will create a good life, will not break your ऋणानुबंध. आपको मुक्त नहीं करने वाले हम. तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, we will create a good life for you, will not break it. But today I am talking about breaking it. So that is why Purnima session mein I said there are some drops of spirituality. आध्यात्म का कुछ पक्ष है यहाँ पे. So you can break. इसीलिए आपको कपालभाति मना कर दिया ना, because you can, if you thrust out your breath, you will break. You will break. But what all you will break, you don't know. आपको जो चाहिए वो भी ब्रेक कर देंगे. Whatever you want in your life, you will even break that. इसीलिए आपको मना कर दिया. नहीं 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 नहीं. First become healthy. First create, and then you can go towards breaking. Yeah? So I'm telling you all the secrets. सारे secret खोल रहा हूं मैं. Creating and breaking, ये दो ही चीज में सारा secret खोल रहा हूं. So it is always good. Whatever, if you want to break, let somebody which is better than you decide. Don't decide if you want to break. इसलिए आध्यात्म आप खुद मत कीजिए, अपनी लाइफ खराब कर लेंगे. आध्यात्म के लिए गुरु ठीक है. आध्यात्म के लिए क्षेत्र इज बेस्ट इफ यू डोंट गेट अ गुरु. अगर गुरु नहीं भी हैं, we ensured in this culture that there are kshetras everywhere. Let the observer decide. Let the observer of that kshetra decide, because he is in tune with existence. वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के साथ में, सृष्टि के साथ में ट्यून इन है, आप नहीं है.
So that is why it becomes even more important that if you want a little spirituality in your life, आप एक जरूर चीज करें, अपने परिवार के साथ में करें। आप तीर्थ के लिए जरूर साल में एक बार जाएं। ताजमहल देखने के लिए मत जाओ, ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, पैसे खर्च होंगे केवल, और ठग लेगा कोई वहां पे। गो टू तीर्थ, एनी established क्षेत्र। Out of the 7 disciples of Shiva, one person is still holding the kshetra of Himalaya. हिमालय पुण्य स्थली है, क्योंकि उस क्षेत्र को वो एक सप्तऋषि में से एक आज भी मेंटेन करते रखते हैं। So if you destroy the whole system, still he will be there. अगर अपने शरीर को खराब भी कर देते हैं, तब भी पीनियल ग्लैंड आपको जीने का मौका देता है। आपके शरीर में भी 7 है ना। एक्चुअली देयर आर 7 क्षेत्रास इन योर बॉडी, आउट ऑफ विच यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर वन। एक के आपके ऊपर बिल्कुल हाथ नहीं है। सो दैट इज एग्जिस्टेंस गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। बाकी और सारे 6 क्षेत्र जो हैं, इन्हें चक्र भी कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट चक्र, बट चक्र इज नॉट द राइट काइंड ऑफ अ टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग दिस 7 क्षेत्र। इनको क्षेत्र कहें तो ज्यादा अच्छा है। देयर आर 114 चक्रास, दैट इज समथिंग एल्स। 114 चक्र हैं आपके शरीर में, वो एक अलग चीज। आपके शरीर में 112, 2 बाहर। So that is chakra, but 7 chakra is not the right terminology. 7 क्षेत्र हैं आपके शरीर में। So क्षेत्र में जाएंगे ना, you will be able to break lot of ऋणानुबंध, and you can become free of all your difficulties also. मेंटल लेवल पे हाउ यू कैन ब्रेक, फिजिकल लेवल पे बताया ब्रेक करने के बहुत तरीके। ऑन मेंटल लेवल हाउ यू कैन ब्रेक योर एंटेंगलमेंट, इफ यू सेलिब्रेट। अगर किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, उत्सव होना चाहिए लाइफ। हाँ, उत्सव के बगैर लाइफ अगर जी रहे हैं तो इट इज नॉट लाइफ। व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके आसपास में यू नो इफ देयर इज समवेयर, एक एग्जांपल है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, यू कैन डू व्हाटएवर। इस्कॉन टेंपल होता है ना, इस्कॉन टेंपल, शाम के वहां पे आरती होती है ना, वहां पे क्या होता है? महामंत्र जाप और डांस, नाचते हैं ना, भजन करते हैं, नाचते हैं। इफ यू जस्ट बी इन दैट क्षेत्र, जस्ट बी देयर, आपके दिन का कितना बोझ निकल जाएगा। यू डोंट, जस्ट गो वंस, एक बार ट्राई करके देखो। और घर में थोड़ा सा मस्ती कर लो ना, अपने बच्चों के साथ में डांस कर लो, सिंग अ सॉन्ग, डू अ लिटिल मूवमेंट, ग्रूविंग कर लो, गीत गा लो, खुशियां मना लो। खुशी मनाने के तो 1000 तरीके होते हैं। उत्सव के बगैर जीवन बेकार है। आप बनाएंगे, तोड़ेंगे नहीं तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे, आप ईज में नहीं आ पाएंगे, डिजीज ही हो रहेगा। ईज नहीं होगा तो डिस ईज होगा। तो उत्सव के बगैर जीना नहीं है। और ये तो उत्सव का देश है ना, 365 फेस्टिवल्स इन अ ईयर, वो थोड़ा बहुत बना दिया हमने, दिवाली, होली एंड here and there and that's it. No, every day has to be a festival. आप जंगल में भी जाएंगे, if you go to a very tribal region, untouched by development, they all dance in the evening, isn't it? दिन में कितना काम करते हैं, शाम को नाचते हैं सब। We need to learn, we need to celebrate. See, difficulties, जिसे आप difficulty कहते हैं,
वो जीवन है. You want to come out of difficulty, you want to come out of life. सांस लेने में भी मेहनत लगती है, मालूम है आपको? कई लोग तो ठीक से नहीं ले पाते. So you want to drop breath? Action is life. You want to drop action? No. You don't. You want action. So जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं ना, वो ही जीवन है. आप तकलीफ को कितना सेलिब्रेट कर सकते हैं, सवाल बस इतना है. आप इस मेहनत को कितना सेलिब्रेट. Even breathing takes effort, isn't it? You think effort is difficulty. No, effort is life. You must enjoy making effort. You must enjoy making effort. गीत गाते हुए काम करिए ना, एंजॉय करते हुए काम करें. You can enjoy any activity or you can be destroyed by that activity. आपकी चॉइस है ये, और कुछ नहीं है, ये आपकी चॉइस है. So mentally, if you are free, keep yourself a little free. Don't be logical all the time. अगर logical ज्यादा रहेंगे तो you'll create disease. Break your logic. Celebrate करें. And then you will emotionally evolve. Emotion आपके बिना celebration के अच्छे नहीं हो सकते. कुछ भी कर लो, whatever you achieve, it will become redundant. बिना celebration के आपके emotions अच्छे नहीं हो सकते. इसीलिए आपको क्या बोला कि अपने लिए कुछ करें, मगर बाकियों के लिए भी कुछ करें. तो सेवा करें. सेवा का कल्चर है ना. सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना. नहीं, ये बोलना गलत है. ये ठीक बोलना नहीं है. ये दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच इट. डूइंग समथिंग फॉर समबडी शुड बी योर हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस मिलता है. मैंने बताया एग्जांपल. इफ यू डू समथिंग फॉर योर किड, यू फील वेरी हैप्पी. अपना बच्चा मानिए ना पूरी दुनिया को. किसके लिए करने का इच्छा नहीं हो, सबके लिए करने की इच्छा. जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही देना. आजकल सब कुछ इट इज नाउ ब्रॉट डाउन टू मनी. नो, it is not about money. It is not about how much you can do. It is about your want to do. हर एक इंसान अलग अलग काम कर पाएगा ना. शायद एक इंसान जाके भंडारे में मदद कर देगा बनाने में, एक इंसान कुछ सामान लाके दे देगा. Somebody will serve. Somebody will clean the place. It is not about what you do. It is about how you do. Life is about how you live. It is not about what is there with you. So these are all methods of breaking these entanglements which can create difficulty. हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपका ईश्वर डांस नहीं कर सकता तो काय का ईश्वर है. He is detached from the process of life. हमारे तो शिव भी तांडव करते हैं. So if you can't enjoy the process of life, what kind of life you have? Quantum healing, इसी को क्या कहते हैं? Quantum healing. You have lot of क्षेत्र for quantum healing. उसका इस्तेमाल कीजिए. हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे बाप दादाओं का प्रसाद है, उसको यूज कीजिए अपनी लाइफ में. सो बहुत हो गया. लेट्स मूव टुवर्ड्स. कितने लोग भाग गए. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस करते हैं. It's a very powerful process, बहुत powerful process है, and you'll see lot of